तबे के तरक्की की हर लिहाज से हर फील्ड में मैं ये सोच रहा हूँ कि इस दौरान बात को समझना, इस दौरान जो जैसे आपने शुरू में कहा नशेबो फराज, जो नशेब आए थे, अगर वो ना आए होते तो मिसाल के तौर पे जो वॉर्स हुई हैं, मिसाल के तौर पे जो इकोनॉमी का क्राइसिस आया था। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हजीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहे खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ। आज की हमारी वीडियो है 7 अचीवमेंट्स इन 7 डिकेड्स। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। गाइस, तो वीडियो का टाइटल है ग्रेविटास प्लस इंडियाज अचीवमेंट्स 75। It's the eve of India's 76th birthday. 75 years ago, at midnight, India made a tryst with destiny. An independent India was born. It was drained, divided, but desperate to make it on its own. How has the journey been so far? Tonight, we'll look at India's achievements at 75, the success stories at 75. Hello and welcome to Gravitas Plus. I'm Palki Sharma Upadhyay. There's so much to talk about. It's been a stupendous journey of 75 years. We decided to start with the economy. The British Crown looted $45 trillion from India. From raw materials to the Kohinoor diamond, the British took all. They also exploited all. The thumbs of Indian weavers were cut off. Indian peasants were crushed. The brightest jewel in the British Crown was left with the prospect of a dim future. Britain deindustrialized India. At the time of independence, India's per capita income was 230 rupees. That's $2.89. The average income was 1/15th of what an average American earned. There was poverty, hunger. The task before India was to lift itself, and it did. There was rapid industrialization, 3 successful revolutions, green, white and blue. India opened itself to the world, globalized its economy, privatized its banks. 75 years later, India is one of the world's leading economies. From less than $3, India's per capita income has grown to almost 2,000. Its share in the world GDP is 3.28%. 7 decades back, India was an import-dependent country. Today, more and more global companies are making in India, and Indian companies are making a mark globally. India is becoming a force to reckon with in more ways than one. Which brings us to geopolitics. India successfully navigated the Cold War. It became a political force for decolonization. India liberated Bangladesh. It reached out to Africa, successfully dehyphenated Israel and Palestine, stuck strategic partnerships with the Gulf. India isolated Pakistan. When India and Pakistan had a dogfight, the world supported India. When Pakistan tried to make an issue out of Kashmir, the world again supported India. Today, world powers see India as an important partner, a leading voice in multilateral forums, the face of peace, the loudest cheerleader of counter-terrorism. Of course, the journey has not been easy. Right after independence, India made some bad decisions, like letting go of a Security Council seat. Then there were security challenges. 1948, Pakistan's incursion into Kashmir. 1962, the war with China. 1999, the war in Kargil. The current standoff in Ladakh. But on every such occasion, India showed the world that it's capable of defending itself, capable of resisting any attempt to redraw its map. India has taught the world tolerance, universal acceptance, and none of it was easy. You may recognize this man, Winston Churchill, Britain's former Prime Minister. Churchill had dismissed India's experiment with self-governance. Why? Because India is socially diverse. 22 languages, 20,000 dialects, numerous religions, numerous regions. Churchill said, India is merely a geographical expression. It is no more a single country than the equator. He was convinced that independent India won't be able to stay together. Well, Churchill was wrong. India remains united and grows stronger. Its success as a secular state has surprised many. Of course, there have been ups and downs. India survived a partition. The Babri Masjid demolition, Operation Blue Star, it's what followed the Gujarat riots. But which country does not have rough patches, and which country can claim to be this diverse? In the initial years post-independence, it was tough keeping the country together. One of the big challenges was public health, or the lack of it. In 1947, the average life expectancy in India was 32 years.
There was rampant spread of communicable diseases like malaria and tuberculosis. In 1947, India registered 75 million cases of malaria. Its total population was 330 million. So almost 23% of the population had malaria. By 1964, the numbers came down. Then there was polio. Until early 1990s, every day around 500 children were getting paralyzed. India fought polio and declared itself polio-free by 2014. Today, India's polio eradication is a case study of healthcare success for the world. India also eradicated smallpox, and as we speak, India is running the world's largest vaccination program. India's healthcare system is one of its biggest achievements. We hardly appreciate it because there's a lot that's not right. But when you look at where we started, the achievements look astounding. Around the time of independence, 2,000 mothers died for every 1 lakh childbirths. 2,000. Today that number is down to 103. Also look at the increase in life expectancy. It's over 100%. This is one of the most important indicators of human development. Today, India is called the world's pharmacy. It exports medicines to 200 countries and regions. Another feather in the cap is technology. India decided to go to space just 17 years after independence. It set up INCOSPAR, or Indian National Committee for Space Research. India's first rocket launch happened in 1963 from a town called Thumba. The rocket parts were transported on bicycles and bullock carts. Look at this photo. This is how India's space journey began. Today, India is a well-established space power. It has reached Mars. Today, India is unfurling the tricolour in space to mark 75 years of independence. Do you know India was also the first country outside the permanent UNSC members to test a nuclear bomb? And it did this despite the world's best efforts. Reports say the CIA killed an Indian scientist to roadblock the nuclear journey. The US had even deployed a satellite over India to spy. So work on the nuclear test was mostly done during the night, and equipment would be returned to the original place in the morning to evade detection by American satellites. Code names were used. The thermonuclear device, for example, was placed in a shaft named White House. On the 18th of May 1974, India took the world by surprise. It became a nuclear power. The operation was called Smiling Buddha. The director of India's Nuclear Research Institute, Raja Ramanna, told the then Prime Minister Indira Gandhi, "Buddha has smiled." How did India achieve all of this? 1. Democracy. 2. Literacy. From the very first day of independence, every adult in India had the right to vote. And just for reference, it took the US 150 years of independence to adopt universal adult franchise. In the last 75 years, India's population has grown from 370 million to 1.4 billion. States have been reorganized, but the sanctity of elections has never been compromised. They're chaotic, yes, they're controversial, but they're held without fail every 5 years. Voters queue up in front of booths, some cast their vote, some vote their caste, but all of them exercise their right. And there have been dark periods. Like the emergency in 1975, then Prime Minister Indira Gandhi was facing protests. Her future in office was uncertain, so she declared a 22-month-long emergency. Democratic institutions were attacked, politicians were locked up, the press was censored. But it did not last. And that's the thing about India's story. It's far from perfect. There's corruption, there's inefficiency, and everything else that we keep complaining about. Yet, India's democracy has delivered. It has alleviated poverty, built world-class infrastructure, and sent Indians to space, to win gold medals and beauty pageants, and to lead the world's biggest companies. Literacy has played an important role here. When India became independent, 4 out of 5 people could not read. The literacy rate was around 12%. For India to grow, it had to educate its people. It made free education a fundamental right. Schemes like Sarv Shiksha Abhiyan and midday meal ensured that children found their way to schools. India expanded its educational infrastructure. In 1947, India had only 28 medical schools, 4 dental colleges, and 33 engineering colleges. Look at the numbers today. The India that could neither read nor write is now the world's biggest talent pool. Top engineers, doctors, Indian origin CEOs all bear testimony to India's growth and transformation. Today's India is home to 1.4 billion people. It is progressive,
yet rooted in its culture and values. It is home to the world's youngest population, the world's largest democracy, the world's largest film industry, the world's largest diaspora population, the second largest road network, a leader in climate action, a market that every company wants to enter, and a strategic force that every government wants to partner. Today, as India celebrates its historical achievements, it also has a clear vision of the future. This is India at 75. जी जनाब। बहुत सारे नशीबो फराज इस वीडियो में हमने देखे। इंडिया एट 75 यानी कि 75 ईयर्स में इंडिया अगर 75 ईयर्स बैक करे तो इंडिया कहाँ था, और अब देखें 2022 में तो इंडिया कहाँ है, 2022 में इंडिया कहाँ है। तो ये मेरे हिसाब से एक तवील सफ़र था जिसको उन्होंने एक छोटी सी वीडियो में हमें समझाने की कोशिश की है कि क्या हालात उस वक्त थे, कैसा इंडिया था, 1997 में क्या था, क्या गलतियाँ हुई, क्या मसले मसाइल हुए, कहाँ से कहाँ पहुँचे। अच्छा, टोटल मवाजना ये है कि हम कहाँ से कहाँ पहुँचे, ठीक है, कहाँ 33, कहाँ 6000। मेडिकल कॉलेजेस के हवाले से बात हुई, स्कूल्स के हवाले से बात हुई, परीक्षा के हवाले से बात हुई, तो बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, बहुत सारे कंट्रीज़, मैंने भी एक दो जगह पे ये पोस्ट पढ़ी थी और एक दो जगह पे आर्टिकल्स देखे थे कि इंडिया के हवाले से, अब बल्कि पाकिस्तान के हवाले से मैंने एक दो जगह देखा कि ये कंट्रीज ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसे ही 30 साल 32 साल एक इनकी लाइफ बताई गई थी कि ये इसके अंदर ख़त्म हो जाएंगे, किस्तों में नाबूद हो जाएंगे। और मैंने पाकिस्तान को तो ये सुना था 2050 तक का। तो खैर, अब डिफरेंट आर्टिकल्स होते हैं, डिफरेंट बातें होती हैं, लेकिन मैं हैरान होती हूँ कि जो लोग बोलते हैं या लिखते हैं, जैसे इन्होंने यहाँ पे भी एक वो थे उनका इन्होंने रेफरेंस किया, चर्चिल। हाँ, इन्होंने इसके बारे में बोला था जो गलत साबित हुए कि 32 ईयर्स का। अच्छा, एक और वीडियो में देखा था जिसमें इंडिया के बारे में बोला गया था कि इंडिया ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाएगा आज़ादी के बाद। तो बहुत कई जगहों पे ये हमें देखने को मिला, सुनने को मिला कि इंडिया का वजूद ज़्यादा दिन तक कायम नहीं रहेगा। लेकिन 75 ईयर्स पूरे हुए इंडिया को, और अब इंडिया एक सुपर पावर बनता हुआ कंट्री है, क्योंकि एक दो जगहों पे दूसरे कंट्रीज़ ने मेंशन भी कर दिया कि उभरती हुई सुपर पावर। चाइना तक ने, चाइना ने करा, एक दो कंट्रीज़ और हैं जो इंडिया को कहते हैं कि इंडिया से आपको, हाँ, जापान हो गया, कि इंडिया एक सुपर पावर है, उभरती हुई सुपर पावर है, और दूसरा एक डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री होने वाला है, ठीक है। तो आप देखिए ज़रा, ये जो पूरा सफ़र था जिसमें इतनी मुश्किलात थी, इतनी परेशानियाँ थी, इतनी हार्डशिप थी, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही और बढ़ते चले गए, पीछे नहीं हटे। जबकि बहुत सारे फैसले गलत भी हुए, बहुत सारे रेवोल्यूशंस आए, बहुत सारे इनकलाब आए, बहुत सारी चेंजिंग आई, तब्दीलियाँ आई, लेकिन वो अपने आप को आगे लेकर चलते रहे, उनमें हिम्मत नहीं हारी। चाहे वो शिक्षा के हवाले से हम बात करें, तालीम के हवाले से बात करें, लिटरेसी रेट आज देखें इंडिया का और उस वक्त क्या था, चाहे आप पर कैपिटा की बात कर लें कि उस वक्त इकोनॉमी क्या थी, उस वक्त क्या था, और अभी की आप बात करें कि कितना ज़्यादा क्या GDP है, क्या इंडिया किस जगह पे किस लेवल पर स्टे करता है। कैपिटा की बात करें अगर हम, तो अब देखें इंडिया की GDP कहाँ स्टैंड करती है और तब कहाँ थी। अच्छा, मैं ये कहूँगा कि 75 साल 75 ईयर 75 ईयर में बहुत बड़ा चेंज, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस, बहुत ही ज़्यादा, मतलब है कि यूँ समझ ले कि ज़मीन और आसमान की जो मिसाल है वो यहाँ कायम नहीं होती, इससे भी ज़्यादा। मैं एक चीज़ और सोच रहा हूँ, इन 75 सालों में इतनी तरक्की दिखी है, इतनी तब्दीली दिखी है, इतना ज़्यादा आत्मनिर्भर, इतना ज़्यादा, मतलब है कि तरक्की की हर लिहाज से, हर फील्ड में। मैं ये सोच रहा हूँ कि इस दौरान, बात को समझना, इस दौरान जो, जैसे आपने शुरू में कहा, नशेबो फराज, जो नशेब आए थे, अगर वो ना आए होते तो मिसाल के तौर पे जो वॉर्स हुई हैं, मिसाल के तौर पे जो इकोनॉमी का क्राइसिस आया था, कुछ गलत डिसीजन आ गए, अगर वो सब भी ना होते तो और कितनी तरक्की होती। अभी कहाँ होते, इन हालात के बावजूद, इतनी ज़्यादा मतलब परेशानियों के बावजूद कि चाइना से अलग मसले, पाकिस्तान से अलग मसले, वॉर बाकायदा हुई, करगिल हुआ, 65 हुआ, 71 हुआ, बड़े मतलब रहे, उलझने रहीं। अगर ये सारा मामलात में अमन होता तो कहाँ होते। अच्छा, दूसरी तरफ हम आ जाते हैं पाकिस्तान पे। आप यकीन करें, एक बच्ची का, मैंने एक बच्ची है, बच्ची नहीं है, मतलब है कि 20 साल 22 साल बच्ची है आपके लिए। मैं ये कह रहा था
कि एक बच्ची का आपने लड़की इंटरव्यू देखा। एक लड़की थी, वो कह रही थी कि मुझे स्पीच के लिए बोला गया कि इंडिपेंडेंस डे पे सही। कि आज़ादी आज़ादी आज़ादी। उसने कहा मैं बिल्कुल सुन हो गई, मैं बहुत परेशान हो गई कि मैं क्या बताऊं, मैं क्या स्पीच लिखूं, मैं क्या स्पीच दूं उस पे 14 अगस्त पे। मतलब मैं क्या बोलूं कि हम क्या थे, हम क्या हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारा मुल्क कहाँ खड़ा हुआ है। कह रही थी कि मुझे कोई खुशी के अल्फाज नहीं मिल रहे थे इंडिपेंडेंस डे पे कि मैं स्पीच तैयार कर सकूं। मैंने लोगों से पूछा, जो सीनियर लोग थे कुछ, उनसे गाइडलाइन लेना चाहिए कि मुझे 14 अगस्त की तकरीर लिखनी है, मैं इसमें क्या लिखूं। तो उसे सीनियर लोगों ने पता क्या कहा, मतलब जाहिर सी बात है एक इंडिपेंडेंस डे पे एक अच्छी तकरीर लिखनी है, तो हम आपको कोई ऐसी बातें बताएं जो मतलब हमारे लिए बड़े फ़ख्र की हैं। तो उन्होंने पता क्या बोला, सॉरी हम मुनाफिक नहीं हैं। ये हालात है पाकिस्तान के कि मैं आपको एक अच्छी सी तकरीर सजेस्ट करूं, उसके अल्फाज दूं, मैं मुनाफिक नहीं हूं। बोला कहने का मतलब ये है कि एक बंदी को तकरीर नहीं मिल रही, अपने बारे में, अपनी कंट्री की तारीफ़ें करने के बारे में कुछ नज़र नहीं आ रहा। क्या हम वाकई आज़ाद हैं? मुझे नहीं समझ आ रही है आपकी बात। 14 अगस्त पे लिखनी थी ना? 14 अगस्त अभी मौजूदा पाकिस्तान पे नहीं लिखनी थी। 14 अगस्त पे सेपरेशन कैसे हुआ, नहीं, हमारे आबाओ अजदाद ने, वो तो हिस्ट्री हो गई ना। देखिए ना, मेरी बात सुने। तो 14 अगस्त पे तो हम नॉर्मली भी हम स्कूल्स में देखते हैं, कॉलेजेस में देखिए, देखते हैं, वो यही तो सब हो रहा होता है। आज़ादी मिली, आज़ादी मिलने के बाद आज 75 साल हो गए, आपने इंडिपेंडेंस डे पे क्या कारनामा किया, आप इसकी बात कर रहे हैं? देखिए 14 अगस्त पे आज अपने 75 साल पूरे हो गए। अब आपको तकरीर करनी है तो अभी के हिसाब से करनी है ना, अपने मुल्क के हवाले से बातें कर। हिस्ट्री को बताते हैं। मैंने अक्सर स्पीचेस देखी, आप सही कह रहे हैं अपनी जगह। मैं आपकी बात समझ गई कि आप कह रहे हैं 2022 तक आपने क्या अचीव किया, आपके कौन से बड़े काम। आप सिर्फ एक टॉपिक पे आ रही हैं, लेकिन नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, मैंने स्पीचेस सुनी है, बड़े यूनिवर्सिटी में हो रही होती है, कॉलेजेस में हो रही होती है, तो वो एग्जैक्टली पता है वो कहाँ किसके इर्द गिर्द घूमती है, वो आज़ादी के इर्द गिर्द घूम रही होती है। हमारे जवानों ने क्या किया, हाँ, वॉर्स में क्या क्या हुआ था, 1971 में क्या हुआ था, 1965 में क्या हुआ था। देखिए वो हो जाती है हिस्ट्री। हाँ, अब आप सही कह रहे हैं कि आपकी बात इस तरीके से इस बात से रिलेट करती है कि वाकई अभी मौजूदा हालात में जो हो रहा है उसको कलमबंद नहीं किया जाता, उसको नहीं बताया जाता इस स्पीच में। क्या बताएं, क्या हासिल किया हमने? अच्छा, बताने के लिए होना ज़रूरी ना, क्या हुआ? एक जगह पर इंडिया में एक वक्त था, इंडिया में किसी ज़माने में लाइफ 32 साल थी किसी एक आम शख्स की, यानी 32 साल सरवाइव कर पाता था इसमें, यानी एवरेज एज। आज वही कंट्री दुनिया की फार्मेसी कहलाता है। मतलब आप कहाँ खड़े हैं? कंट्रीज हैं दुनिया में। अच्छा, कितने मेडिकल कॉलेज, कितने बड़े बड़े डॉक्टर, आईटी से रिलेटेड इंडिया ने कहाँ से कहाँ अपने आप को पहुँचा दिया यार। बारे में सोचती हूँ, एक टेक्नोलॉजी और दूसरा सॉफ्टवेयर वगैरह के हवाले से भी इंडिया बहुत आगे है। बेशक हमारे लोग मानते हैं इस बात को, तो उसमें कोई कबाहत नहीं है, जो सच है वो सच है। हकीकत को तस्लीम करना चाहिए, इतना तो आपके अंदर बूटा और इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप नजरें ना चुराएं, कम से कम हकीकत से आंखें मिलाएं। दूसरी बात ये है कि मैं ये सोचती हूँ इंडिया ही फार्मेसी क्यों है ना। आप थोड़ा सा मतलब नज़र घुमाएं, आपको वर्ल्ड में कौन कौन से कंट्रीज दिखते हैं, कितने तरक्की याफ्ता कंट्रीज दिखते हैं। बड़ी बात है कि जो चुटकियों में एक नासा हो गया, दूसरी चीज़ें हो गई, जो चुटकियों में रिसर्च कर सकते हैं, चुटकियों में चीज़ें बना लेते हैं, उसके बावजूद भी एक ये ताज, ये सहरा इंडिया के सर आ जाता है कि इंडिया वर्ल्ड की फार्मेसी है और कोई कंट्री नहीं है। आपको पता है हमारे यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं जो रोना रो रहे हैं फ्रीलांसिंग के हवाले से। सीखो, करो, सिर्फ़ और सिर्फ इस वक्त हमारे पास कोई सरमाया नहीं है। सबसे सस्ता तरीन तरीका मुल्क को गुर्बत से निकालने का फ्रीलांसिंग है। लोग रो रहे हैं, पीट रहे हैं, 8-10 लोग ऐसे हैं चरिए। तो वो पता है चरिया कह रहे हैं वो, मतलब इस वक्त इस दौर में चरिए ही हैं वो लोगों की नज़र में कि यार ये तो पागल हो गए, ये लोग क्या बातें कर रहे हैं। वो अपने आप को खुद कहते हैं कि हम तो चरिए हैं, क्योंकि वो अजीब बात कर रहे हैं लोगों की नज़र में। वो पता क्या कहते हैं, वो अपनी अक्सर बातों में इंडिया की मिसालें देते हैं। जितने भी पाकिस्तान में बड़े बड़े फ्रीलांसिंग सिखाने वाले या फ्रीलांसिंग की तरबियत देने वाले कहते हैं कि फ्रीलांसिंग की तरफ आओ, गुर्बत को ख़त्म करने का सबसे जल्दी सबसे आसान तरीका है। कोई आपको इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, कोई आपको फैक्ट्रियाँ नहीं लगानी, कोई आपको कारखाने नहीं लगाने, थोड़ी सी स्किल सीखनी है, सॉफ्टवेयर बनाना, वेबसाइट बनाना। आप फवाद चौधरी को जानते हैं? अच्छा, मैं इस बात को कंप्लीट कर लेता हूँ। तो वो इंडिया की मिसालें देते हैं कि हम जहाँ देखें इंडियन बैठे हुए, हम जहाँ देखें पाकिस्तानी का नाम ही नहीं आता। तो अक्सर मिसालें देते हैं कि इंडिया हमसे 100 गुना आगे है।
100 से भी कई ज़्यादा गुना, मैं तो 100 गुना भी नहीं मानती। अच्छा खैर, मैं एक बात आपको फवाद चौधरी वाली मैं आपको एक बात बताऊँ कि हमारे जो मिनिस्टर्स हैं ना, हमारे जो लोग हैं जो इदारों को चला रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं मेंशन करना चाह रही, लेकिन फवाद चौधरी की क्योंकि मैंने चैट पढ़ी तो इनका नाम मैं ले रही हूँ, इनके कान खड़े हो जाते हैं किसी इंडियन के हवाले से कोई बात सुन लें या किसी इंडियन पॉलिटिशियन के हवाले से कोई बात सुन लें, किसी कोई स्पीच देख नहीं। अब ना ये पता नहीं क्या लाशऊरी तौर पे किसी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो गए क्या, ऐसा कुछ है। मैंने एक पोस्ट देखी, उसके अंदर बहुत सारी चैट थी, रियल अकाउंट था फवाद चौधरी का, रियल ब्लू टिक लगा हुआ था, ओरिजिनल था वो, ऑथेंटिक बिल्कुल। उससे एक लड़के ने ऐसी फिरकी लेने के लिए उनको मैसेज करा इंडियन बन के, उनको कहा कि मैं रामचरण समथिंग समथिंग करके बात कर रहा हूँ और मैं इसरो में हुआ करता हूँ और मैं आपसे कुछ स्पेशल चीज़ें और कुछ बहुत कॉन्फिडेंशियल चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। तो 3-4 मैसेज उसने कर दी, काफ़ी देर के बाद उनका रिप्लाई आ गया कि आप कौन हो, आप इंडियन हो? तो उसने कहा हाँ मैं इंडियन हूँ। अच्छा है पाकिस्तानी, फिरकी ले रहा है इंडियन बन के। तो उन्होंने कहा अच्छा आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हो कि ये है और वो कह रहे हैं, असल में मैं इसरो में काम करता हूँ, मुझे सम्मान नहीं देते, इज्जत नहीं देते, जो मुझे बनता है, मेरे चाचू भी वहाँ होते वो मुझे नहीं देते, मैं बहुत परेशान, मेरा दिल ख़राब हो गया है, तो मैं आपको ना कुछ कॉन्फिडेंशियल चीज़ें बता रहा हूँ। तो कहने लगा हम चंद्रयान 3 लॉन्च कर रहे हैं और उस पर जा रहे हैं, उसका काम कर रहे हैं, तो मैं सारी चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ चंद्रयान 3 के हवाले से। तो वो बहुत ना एक्साइटेड हो गए फवाद चौधरी। उन्होंने कहा अच्छा बताओ मुझे, लेकिन एक काम करो पहले मुझे ID प्रूफ दो कि तुम इंडियन हो, कि नहीं अपना NIC दो। तो उसने कहा सॉरी मैं वो नहीं दे सकता आपको, हाँ मैं अपना मेल दे देता हूँ। मेल रामचरण के नाम से एक मेल प्रोवाइड कर दिया उनको। कह लिया अच्छा ठीक है मैं बिलीव करता हूँ, ठीक है मैंने मान लिया, आगे बताओ क्या है, क्या इन्फॉर्मेशन लेकर आए हो तुम मेरे लिए। तो कह रहा है असल में हम चंद्रयान 3 कर रहे हैं जो चंद्रयान 2 से भी चीप है, ठीक है, और मैं आपको सब कुछ बता देता हूँ कैसे होगा क्या होगा, तो आप एक काम करो पाकिस्तान में बना लो, कर लो ना, और आप हमसे पहले वो कर लो। और क्या कहते हैं मेरा दिल क्योंकि इसरो से ख़राब हो चुका है तो मैं आपसे कांटेक्ट करके आपको बता रहा हूँ, बस लेकिन कॉन्फिडेंशियल रखना, किसी को बताना, ये राज है कि मैंने आपसे बात करी है क्योंकि मैं उनके एक हसास इदारे से बात कर रहा हूँ। तो उसने बोला ठीक है डन हो गया, मैं किसी को नहीं बताऊँगा, आप मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दो, सारा काम करवाने का काम है फवाद चौधरी। उसने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, इतना कॉस्ट आएगा, ये होगा वो होगा, चीप होगा, हो जाएगा, मैं आपको बता दूंगा कैसे कैसे और क्या करना है, ये टेक्नोलॉजी यूज़ होगी, ये ऐसे बनेगा। सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद कहने लगा अच्छा ठीक है, कहने लगा अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं पिक्चर भी सेंड कर दूँ आपको चंद्रयान 3 की, जो हम बना कर रख चुके हैं, लेकिन अभी हमने बड़ा कॉन्फिडेंशियल रखा, बताया नहीं। कहने लगा ठीक है मैकेनिज्म वगैरह समझ में आ गया, आप पिक्चर दो, पिक्चर का वेट करने कर साइकिल सेंड करी जिसके पीछे रॉकेट लगा हुआ है, और फिर बाद उन्होंने बोला व्हाट द हेल, और उसको ब्लॉक कर दिया। अरे रियल फवाद चौधरी से फिर की ले ली बंदे ने, इंडियन बन के, बड़ी बात है। तो मुझे उस चीज़ से ये आइडिया हुआ, मजाक तो अपनी जगह, और वो मैं हैरान हूँ कि कैसे लोग हैं, किस तरीके से हैंडलिंग करते हैं अपना अकाउंट्स की, कैसे आ जाते हैं बातों में। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि इंडियंस को लेकर वो इतना ज़्यादा मतलब एक कोई मैं क्या बोलूँ कि किस तरीके से खाइफ हो चुके हैं, इसको खाइफ बोल सकते हैं, खौफजदा है कहीं ना कहीं से कि वो आगे से आगे बढ़ रहे हैं और हम पीछे से पीछे। क्या वो कोई अगर रैंडम बंदा भी उनको उनसे खिड़की लेने के लिए या उन्हें तंग करने के लिए मैसेज करते हैं इंडियन बन के, वो फ़ौरन रिस्पॉन्स देते हैं कि वाकई हमारे वारे नियारे ना हो जाए। और इससे पहले अगर उन्हें कोई पाकिस्तानी बंदा बात कर रहा हो तो ये जवाब ही नहीं देंगे मेरे ख्याल में, नहीं ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जवाब ही नहीं देंगे, बिल्कुल ही नहीं देंगे 100%। वो राम मनोज करके उन्होंने रामचरण करके कुछ ID भी शेयर करी, तो उसके बाद उनको यकीन आ गया, जबकि उसने अपना फिर भी NIC नहीं दिया था क्योंकि वो तो इंडियन था ही नहीं। यहीं से डाउट होना चाहिए था, डाउट होना चाहिए था, मतलब नाम उसमें काट देता, कुछ भी कर लेता, यहीं से मतलब है कि मेरे जैसा बंदा होता तो थोड़ा सा रिजर्व हो जाता। लेकिन नहीं ना, पाकिस्तानी NIC तो समझ आता है। अरे वो इंडियन NIC कहीं से अगर देता, कहीं से डाउनलोड कर लेता, कुछ भी कर, कहीं से भी डाउनलोड कर सकता अच्छा था। आपने बात नहीं करी, आप डायरेक्ट इमरान खान से करिएगा। मैं SG शंकर बात कर रहा हूँ। बात हो रही थी 75 सालों की, तो ये कोई बहुत बड़ी बात है कि कहाँ से स्टार्ट हुई ये कहानी और कहाँ तक आज पहुँची, और ना सिर्फ ये रुकी हुई है बल्कि मज़ीद स्पीड इसने पकड़ ली है। और दूसरी तरफ वहाँ पर भी 75 साल हो गए हैं, लेकिन यकीन करें मुझे उस तकरीर लिखने वाले की बात याद आ रही है कि वो कह रहे थे हमारे पास अल्फाज नहीं है कि हम 75 साल के हो गए हैं और मैं क्या तकरीर में अच्छा आप बताओ, इतनी बातें इतने भाषण साइड में, सिर्फ आप किसी बच्चे को भी बता दें कि जब स्टार्ट किया था ना इंडिया ने तो 203 रुपये GDP थी, और अब 1980 शायद 1980 एग्जैक्टली मुझे याद आ रहा है, तो आप खुद देख लें कितना अंतर है, बहुत फ़र्क, बहुत ही ज़्यादा फर्क है, हज़ारों गुना। मतलब आपने सही कहा कि यहाँ तो ज़मीन और आसमान की भी अगर हम मिसाल दें कि ज़मीन से आसमान बन गया है, तो ये मुझे कम लग रहा है, इतना भी नहीं, इससे भी ज़्यादा।
और आगे मज़ीद ज़्यादा देखने को बिल्कुल मिलेगा। ऐसा ही है। और मैं ये भी सोचता हूँ कि अगर वो नशेब व फराज भी नहीं होते तो शायद और कहाँ से कहानी होती है। तो एक बहुत नशेब व फराज समझ रही है, अप एंड डाउन्स, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में खुश। कुछ नहीं, थैंक यू, मुझे नहीं पता था। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, दोबारा किसी वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह